بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ پارٹ 7 ہے. آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں کاروان دہشت. مصنف مظہر کلیم ایم اے. آواز ہیرا مجید کی. یہ کتاب آپ کی خدمت میں بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960. واٹس ایپ نمبر 033324955373 پر محمد اظہر لطیف سے. معزز سامعین، تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 7 صفحہ نمبر 134 سے. ٹھیک ہے، اب مجبوری ہے، چیف پائلٹ نے کہا اور اس پار کی طرف پشت کر کے اس نے ہیڈ فون کانوں سے لگایا اور جہاز کو حرکت میں لے آیا. اس پار خاموش کھڑا تھا، لیکن جہاز کی رفتار ذرا سی تیز ہوئی کہ اچانک چیف پائلٹ نے رفتار آہستہ کر لی. رن وے پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی. اب جہاز نہیں اڑ سکتا، تم خود دیکھ رہے ہو، چیف پائلٹ نے بجھے لہجے میں کہا. سیکنڈ پائلٹ کے اس دردناک قتل کے بعد وہ حوصلہ چھوڑ بیٹھا تھا. رن وے کے حکام سے بات کرو. اگر انہوں نے 1 منٹ کے اندر رکاوٹیں دور نہ کی تو میں پورا جہاز اڑا دوں گا، اسپارک نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا. اور چیف پائلٹ نے ایک بٹن آن کر دیا. ہیلو چیف پائلٹ کی P4 اسپیکنگ. میرا جہاز ہائی جیک ہو چکا ہے. ہائی جیک؟ پائلٹ کیبن میں موجود ہے. اس کے ایک ہاتھ میں طاقتور بم ہے اور دوسرے ہاتھ میں ریوالور ہے. اس نے سیکنڈ پائلٹ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے اور اب اس کا حکم ہے کہ اگر 1 منٹ کے اندر رن وے پر کھڑی کی جانے والی رکاوٹیں دور نہ کی گئیں تو وہ بم آن کر کے جہاز کو تباہ کر دے گا. اور چیف پائلٹ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا. جہاز کو پرواز کی اجازت نہیں دی جا سکتی، جہاز میں ٹیکنیکل خرابی ہے. اور دوسری طرف سے ایک سرد آواز سنائی دی. سنو الو کے پٹھوں، اگر تم نے 1 منٹ کے اندر رکاوٹیں دور نہ کی تو میں پہلے چیف پائلٹ کو ہلاک کروں گا اور پھر دوسرے لمحے میں پورا جہاز تباہ کر دوں گا. 200 مسافروں سمیت اسپارک نے غصے میں سے دھاڑتے ہوئے کہا. چیف پائلٹ، کیا واقعی ہائی جیکر کے ہاتھوں میں بم موجود ہے؟ اوور. دوسرے طرف سے پوچھا گیا. ہاں موجود ہے اور انتہائی طاقتور بم ہے. اوور. چیف پائلٹ نے جلدی سے جواب دیا. ٹھیک ہے، رکاوٹیں ہٹائی جا رہی ہیں، تم جہاز کو اڑا سکتے ہو اور ہائی جیکر جو کہے اسے تسلیم کر لو. ہمیں 200 مسافروں کی جانیں عزیز ہیں. اوور. اسی طرف سے فیصلہ کن لہجے میں کہا گیا اور اسپارک کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹیں دوڑنے لگی. اور پھر چند لمحوں بعد باقی رکاوٹیں دور کر دی گئی اور پائلٹ نے سر ہلاتے ہوئے جہاز کو دوبارہ حرکت دی اور جہاز کی رفتار آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی. اور پھر چند لمحوں بعد جہاز فضا میں پرواز کر گیا اور اسپارک کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے. اس کے چہرے پر فتح کے آثار نمایاں تھے اور اب ہر طرح سے مطمئن تھا. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا عمران کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا. اسے معلوم تھا کہ ایک بار سلطان ملک سے باہر نکل گئے تو پھر انہیں واپس لانا اور وہ بھی زندہ تقریباً ناممکن ہوگا. عمران کار کو انتہائی تیز رفتاری سے چلانے کے ساتھ ساتھ سڑک کے دونوں سائڈوں کو بھی غور سے دیکھتا جا رہا تھا. اور پھر تقریباً 10 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد اچانک ایک بلڈنگ کے قریب اس نے کار ایک جھٹکے سے روکی اور ڈرائیونگ سیٹ پر اتر کر بھاگتا ہوا اس عمارت کے اندر موجود پبلک فون بوتھ کی طرف بڑھتا چلا گیا. پبلک فون بوتھ کے اندر ایک ادھیڑ عمر آدمی اس کے وقت فون کرنے کے مصروف تھا. عمران نے ایک جھٹکے سے بوتھ کا دروازہ کھولا اور پھر اس سے پہلے کہ فون کرنے والا کوئی احتجاج کرتا، عمران نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک زوردار جھٹکے سے باہر پھینک دیا اور پیڈل دبا کر اس نے تیزی سے ٹریگر دبانے شروع کر دیے ٹٹولنی شروع کر دیے اور پھر سکے نکالے اور اس نے ڈالے اور تیزی سے ایئرپورٹ مینیجر کے نمبر گھمانے شروع کر دیے. اس نے پہلے فون کرنے والا اٹھ کر غصے میں چیخ رہا تھا، لیکن عمران کو اس بات کا ہوش تک نہ تھا. اور پھر ٹائیگر نے آ کر ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ چوکا اور پھر بڑبڑاتا ہوا تیزی سے ایک طرف بڑھتا چلا گیا. ہیلو ایئرپورٹ مینیجر، عمران نے چیختے ہوئے کہا. یس سر. PA2 ایئرپورٹ مینیجر. کون بول رہا ہے؟ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک آواز سنائی تھی. چیف آف سیکورٹی سروس ایکسٹرو اسپیکنگ. اٹ از ایمرجنسی. ایئرپورٹ مینیجر سے بات کرا. عمران نے ایکسٹرو کے لہجے میں دھاڑتے ہوئے کہا. یس سر. دوسری طرف سے PA نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور دوسرے لمحے ایئرپورٹ مینیجر کی آواز سنائی دی. یس سر، میں ایئرپورٹ مینیجر خالد صدیقی بول رہا ہوں. بولنے والا کا لہجہ مودبانہ تھا. خالد صاحب، روسیہ جانے والے طیارے کو جس کی پرواز کا وقت 12:30 بجے ہے اسے فوراً روکو ہر قیمت پر. عمران نے 2 بار دھاڑتے ہوئے کہا. مگر سر طیارہ تو حرکت میں آنے والا ہے، مینیجر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا. اسے روکو ہر قیمت پر، میرا حکم ہے. میرے نمائندے
10-15 मिनट में तुम तक पहुंच जाएंगे, कोड एक्स्ट्रा होगा और वहां आकर खुद ही सूरत हाल को संभाल लेंगे, इमरान ने गुस्से लहजे में कहा। मगर सर बात क्या है, कुछ तो पता चले, एयरपोर्ट मैनेजर ने घबराए हुए लहजे में कहा। इस तैयारे में एक रूसियाई आदमी जा रहा है, दुबला पतला और बांस की तरह लंबा, ये इसकी निशानी है, उसे हर कीमत पर गिरफ्तार करना होगा। इसके साथ एक ताबूत भी है, इस ताबूत को भी उतारना है, समझे? तुम बस जहाज को रोको, बाकी काम मेरे नुमाइंदे कर लेंगे, इमरान ने कहा और फिर बगैर दूसरी तरफ से जवाब सुने इसने रिसीवर हुक में लटका दिया और फोन बूथ से निकालकर भागता हुआ कार में आ बैठा और फिर कार एक झटके से आगे बढ़ गई। क्या हमारा मेकअप? टाइगर ने शायद मेकअप के बारे में कुछ कहना चाहा, क्योंकि वो दोनों इस बार धुंधले के मेकअप में थे। खामोश रहो, इमरान ने उसी तरह बुरी तरह झटक दिया और टाइगर वहां सहम कर सीट में दुबक गया, जैसे उस्ताद बच्चे को झटक देता है और वो बेचारा सहम जाता है। और फिर इमरान को एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते 12 मिनट मजीद लग गए। इसने कार टावर के करीब जाकर रोकी। इस वक्त एयरपोर्ट पर जबरदस्त हलचल मची हुई थी, लोग तेजी से इधर उधर भाग रहे थे। इमरान तेजी से कार से नीचे उतरा और टावर की तरफ भागा, मगर दरवाजे पर खड़े मुसल्लह सिपाही ने उसे रोक लिया। एक्स्ट्रो कहाँ है? एयरपोर्ट मैनेजर, इमरान ने गुस्से लहजे में कहा। ओह सॉरी, वो ऊपर टावर पर है। सिपाही एक्स्ट्रो का नाम सुनते ही झिझक कर पीछे हट गया। इमरान झपट कर अंदर दाखिल हुआ, टाइगर इसके पीछे था और फिर वो बैक वक्त दो सीढ़ियां फैलांगते और फिर ऊपर टावर पर पहुंच गए। टावर में इस वक्त एयरपोर्ट के तमाम आला हुकाम मौजूद थे और इस सब के चेहरे पर शदीद खौफ हिरास तारी था। इमरान और टाइगर के हुलिये देखकर वो सब बुरी तरह चौंक पड़े। एक्स्ट्रो, इमरान ने तेजी लहजे में कहा। और मिस्टर, आप एक्स्ट्रो के नुमाइंदे हैं? मैं एयरपोर्ट मैनेजर हूँ। सूरत हाल बेहद खराब हो चुकी है। वो देखिए, सामने जहाज मौजूद है, 200 मुसाफिर इसके अंदर हैं और वो दुबला पतला आदमी बम लिए पायलट केबिन में मौजूद है, एयरपोर्ट मैनेजर ने तेज लहजे में कहा। मगर इस दुबले पतले आदमी को छेड़ा क्यों गया है? इमरान ने इंतहाई गुस्से लहजे में कहा। दरअसल एक्स्ट्रो ने जब हमें फोन किया कि दुबला पतला आदमी से खतरा है, तो हमने पहले 10 मिनट के लिए जहाज को वापस मोड़कर हैंगर में खड़ा किया और इसकी मरम्मत का ड्रामा रचाया। लेकिन कंपनी के आला हुकाम ने हम पर जोर दिया कि अगर हमने जहाज को मजीद रोका तो कंपनी की साख को नुकसान पहुंचाने के अवैध एयरपोर्ट हुकाम पर लाखों डॉलर हर जाने का दावा कर देंगे। चुनाचे वहां से मजबूरन जहाज निकालना पड़ा। फिर हमने एक तरफ याफ्ता गार्ड को पायलट केबिन में भेजा और इस सेकंड पायलट की मदद से इस दुबले पतले आदमी को केबिन में बुलवाया। हमारा ख्याल था कि वो एक तरबियत याफ्ता गार्ड पायलट केबिन में इसे दुबले पतले आदमी पर काबू पाकर उसे जहाज से निकाल लेगा। इस तरह एक्स्ट्रो का मसला हल हो जाएगा। लेकिन वो दुबला पतला आदमी बेहद फुर्तीला और खतरनाक निकला। इसने जेब से एक जदीद तरीन बम निकाल लिया और फिर इस तरह गार्ड बेबस हो गया और इस आदमी ने गार्ड को नीचे उतारने पर मजबूर कर दिया और फिर पायलट के जहाज उड़ाने पर मजबूर किया। पायलट ने शुरू से ही ट्रांसमीटर खोल रखा था, इसलिए पायलट केबिन में होने वाले तमाम गुफ्तगू हम सुनते रहे। बाद अज़ा इस हाईजैकर ने सेकंड पायलट को हलाक कर दिया। इस पर हमने वनवे पर रुकावटें खड़ी कर दी, लेकिन जब वो रुकावटें उठाने का हुक्म दे रहा है, वरना वो कहता है कि पूरे जहाज को बम से उड़ा देगा। एयरपोर्ट मैनेजर ने जल्दी से सब वाकयात बताते हुए कहा, ठीक है, हम दोनों को पिछले तरफ से जहाज में दाखिल कर दो और फिर जहाज को उड़ने का हुक्म दे दो। हम उस दुबले पतले आदमी पर खुद से काबू पा लेंगे, इमरान ने कहा। और फिर पायलट एयरपोर्ट मैनेजर ने एक आदमी को हुक्म दिया और वो इमरान और टाइगर को तेज रफ्तार जीप में बिठाकर ले जाए और इमरजेंसी गेट खोलकर इन्हें अंदर पहुंचा दे। चुनाचे इमरान और टाइगर इस आदमी के हमरा दौड़ते हुए टावर से नीचे दरवाजे और फिर चंद लम्हों बाद इसकी जीप जहाज की पुष्ट की तरफ से घूमकर जहाज की तरफ बढ़ती चली गई। इस वक्त रनवे से रुकावटें दूर की जा रही थी और फिर इस ऑफिसर ने मास्टर की मदद से बाहर से ही इमरजेंसी गेट खोल दिया और इमरान और टाइगर उछलकर तैयारी के अंदर दाखिल हो गए। इसके अंदर दाखिल होते ही जहाज हरकत में आ गया। जहाज में सवार तमाम मुसाफिर सख्त परेशान और हरासा मालूम हो रहे थे। इन्हें शायद एयर होस्टेस से हाई जैकिंग के मुतालिक बता दिया गया था। जब इमरान और टाइगर अंदर दाखिल हुए तो वो और भी ज्यादा घबरा गए, लेकिन इमरान और टाइगर इनकी तरफ तवज्जो दिए बगैर पायलट केबिन की तरफ बढ़ते चले गए। इमरान के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी, क्योंकि सूरत हाल बेहद नाजुक हो गई थी। इस पार के हाथ में अगर कोई वाकई खौफनाक बम हुआ तो इसने उसे चलाने में दुरेग नहीं करना।
اور ویسے بھی وہ روسیا کا ٹاپ سیکریٹ ایجنٹ تھا. ہر قسم کے حربے جانتا تھا، کیوں کوئی عام ہائی جیکر نہ تھا. اس لیے عمران بہت سنجیدہ تھا. جس وقت عمران پائلٹ کیبن کے دروازے کے پاس پہنچا تو اس وقت جہاز نے زمین چھوڑ دی تھی اور ہوا میں بلند ہوتا چلا جا رہا تھا. عمران نے جھک کر پائلٹ کیبن کے دروازے کے کی ہول سے آگ لگا دی اور اندر کا منظر دیکھنے لگا. اس نے دیکھا کہ پائلٹ کی دروازے کی طرف پشت تھی اور اسپارک اس کی سائیڈ میں اس طرح کھڑا تھا جیسے وہ پورے کمرے کو کور کر رہا ہو. اس کے ایک ہاتھ میں واقعی بم تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک پلاسٹک کا بنا ہوا پسٹل تھا. عمران کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کے دیکھتے اسپارک نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بم کو جیب میں ڈال دیا اور اب صرف پسٹل اس کے ہاتھ میں رہ گیا. شاید اس نے پائلٹ کے لیے خالی پستول کو ہی کافی سمجھا تھا اور ویسے بھی وہ اب پوری طرح مطمئن ہو گیا تھا کیونکہ جہاز فضا میں بلند ہو چکا تھا اور اب ظاہر ہے اسے ایئرپورٹ کے حکام اور گارڈوں سے بھی جو خطرہ تھا وہ دور ہو چکا تھا. اتنا وہ جانتا تھا کہ سہمے ہوئے مسافر ایسی صورتحال میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے پستل کا ایک فائل ہی کافی ہے اور پھر اسے مسافروں میں جانے کی ضرورت ہی نہ تھی. عمران سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے دروازہ کھول کر اسپارک پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو وہ ایک لمحے میں گولی اس کے سینے میں داغ دے گا. اس لیے اس نے ایک اور تجویز سوچی اور ایک ایسی تجویز جو شاید اس کے علاوہ اور کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا. اب اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور نکالا اور اس کی نالی کی ہول کے سوراخ پر رکھ کر اس نے اندازے سے ایک ایسا زاویہ بنایا کہ کی ہول سے گولی نکل کر صرف اسپارک کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پسٹل پر پڑے اور نہ صرف پسٹل پر پڑے بلکہ گولی اس زاویے سے پڑے کہ وہ جہاز کی مشینری کو بھی نقصان نہ پہنچائے. لیکن کی ہول پر ریوالور کی نال آ جانے کی وجہ سے وہ اپنی آنکھ سے دیکھ کر نشانہ نہ لے سکتا تھا اور اب اسے نہ صرف ذہن میں موجود پائلٹ کیبن کے تصور کی مدد سے ہی فائر کرنا تھا اور یہ ایک ایسا بات تھی جسے شاید دنیا کا ماہر نشانہ باز ہی پورا کرنے کی ہمت نہ رکھتا، کیونکہ ذرا سے نشانہ چوکنے کے دو نتیجے ہو سکتے تھے، یا تو گولی جہاز کی مشینری پر جا لگتی اور نتیجے پر یہ پورا جہاز سے ہی تباہ ہو جاتا، یا پائلٹ کے سر میں بھی گولی گھس سکتی تھی، یا پھر اسپارک کو سرے سے لگتی ہی نہیں نہ اور وہ چوکنا ہو جاتا. اور ان تمام باتوں کے امکانات صحیح نشانے کی نسبت زیادہ تھے، لیکن ایسا کام کرنے والا عمران تھا، وہ عمران جو ناممکن کو ہمیشہ ممکن کرتا چلا آ رہا تھا. اس کے ذہن میں پائلٹ کیبن کا پورا نقشہ موجود تھا. اس نے آنکھیں بند کی اور پھر وہ ذرا سا نیچے کو جھکا اور اس نے ہاتھ کو بائیں طرف ہلکا سا موڑا اور دوسرے لمحے سانس روک کر اس نے ٹریگر دبا دیا. ہلکا سا دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی عمران نے پوری قوت سے دروازے کو دھکا دیا اور اچھل کر اندر پہنچ گیا. عمران کا نشانہ بالکل ٹھیک پڑا تھا. اسپارک کے دائیں ہاتھ سے خون نکل رہا تھا اور ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور حیرت سے آنکھیں پھاڑے نیچے گرے ہوئے ریوالور کو دیکھ رہا تھا. دروازہ کھلتے ہی وہ بری طرح اچھلا. اس نے پھرتی سے جیب سے بم نکالنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے عمران کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور اسپارک کی گردن پر بھرپور ضرب لگ گئی. بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور اسپارک کی گردن پر بھرپور ضرب لگی اور وہ اچھل کر کیبن کی دیوار سے جا ٹکرایا. مگر کیبن کی دیوار سے ٹکراتے ہی وہ کسی اسپرنگ کی طرح اچھلا اور اس نے عمران کے سینے پر پوری قوت سے فلائنگ کک ماری اور عمران اچھل کر دوسری سیٹ کے قریب پڑی ہوئی سیکنڈ پائلٹ کی لاش پر جا گرا اور اسپارک نے کک مار کر سیدھا ہوتے ہی جیب میں ہاتھ ڈال کر انتہائی پھرتی سے بم نکال لیا. مگر جیسے ہی اس کا ہاتھ جیب سے باہر آیا، دروازے کی آڑ میں چھپا ہوا ٹائیگر عقاب کی طرح اس پر جھپٹا اور اس کے ہاتھ کی زوردار ضرب لگاتے ہی بم اسپارک کے ہاتھ سے نکل کر ہوا میں اچھلا اور ٹائیگر نے اسے فضا میں ہی جھپٹ لیا. اسپارک نے سانپ کی تیزی سے پلٹ کر ٹائیگر کے سینے پر ٹکر مارنی چاہیے، مگر ٹائیگر نے تیزی سے پہلو بدل لیا اور اسی لمحے عمران کی لات گھومی. وہ اس دوران اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا اور عمران کی لات پوری قوت سے اسپارک کی پشت پر پڑی اور وہ پائلٹ کیبن کے کھلے دروازے سے گیند کی طرح اچھل کر مسافروں کی سیٹوں کے درمیان والی راہداری میں منہ کے بل جا گرا اور عمران نے اس پر چھلانگ لگا دی. لیکن اسپارک نیچے گرتے ہی تیزی سے کروٹ بدل گیا اور عمران کو اپنے آپ کو فرش سے بچانے کے لیے دونوں ہاتھ فرش پر ٹیکنے پڑے اور اسپارک نے کروٹ بدلتے ہی تیزی سے ٹانگ گھمائی اور عمران اچھل کر ساتھ والی سیٹ پر پڑے ہوئے مسافروں پر جا گرا اور اس کے حلق سے چیخ نکل گئی. تمام مسافروں میں
भगदड़ सी मच गई। वो अपनी सीटों से उठकर खड़े हो गए थे, लेकिन इमरान को उछालकर स्पार्क ने तेजी से उठने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने सीटों पर गिरते ही दोनों टांगों को मखसूस अंदाज में हरकत दी और उठते हुए स्पार्क की पतली सी गर्दन इसकी टांगों के दरमियान फंस गई और इमरान उछलकर इसके बकिया जिस्म पर गिरा और इसके साथ ही इसने स्पार्क की टांगों पर हाथ रखकर पूरी कुव्वत से अपनी दोनों टांगे को बल दे दिया और स्पार्क का पूरा ऊपर वाला आधा जिस्म तेजी से मुड़ता चला गया, जबकि बाकी आधा जिस्म इमरान के हाथों की गिरफ्त की वजह से सीधा रह गया और स्पार्क के हलक से कड़कनाक चीख निकल गई। अपनी टांगों को बल देते ही इमरान ने टांगों को अपनी तरफ घसीटा और स्पार्क को दुबला पतला जिस्म कमान की तरह बल खाता चला गया और चूंकि इसके निचले जिस्म पर इमरान का पूरा बोझ था, इसलिए पहले ही जोरदार झटके से स्पार्क की रीढ़ की हड्डी के मोहरे खिसकते चले गए और स्पार्क के मुंह से एक तवील और दर्दनाक चीख निकली और इमरान ने इसकी गर्दन से टांगे हटा ली और उछलकर खड़ा हो गया। स्पार्क अब हकीर केचुए की तरह बेसदर्द हो चुका था। रीढ़ की हड्डी के अपने मोहरे खिसकते ही इसका सारा जिस्म मफलूज होकर रह गया था और अब वो सिवाय कराहने के अपने जिस्म को मजीद हरकत देने से माजूर हो चुका था और इमरान ने जानबूझकर ऐसा किया था क्योंकि वो ना ही स्पार्क को मारना चाहता था और ना ही उसे यूं छोड़ना चाहता था। इसलिए इसकी एक ही सूरत थी कि उसे मफलूज कर दिया जाए। इसका इलाज भी इमरान जानता था कि जिस वक्त वो चाहे मोहरे वापस अपनी जगह बिठाकर स्पार्क को ठीक किया जा सकता था। वो दरअसल स्पार्क को इसलिए जिंदा रखना चाहता था कि क्योंकि टेप में स्पार्क बजाते खुद मीटिंग में मौजूद था और वो इससे बात की मालूमात हासिल करना चाहता था कि मीटिंग में होने वाली तजवीज पर किस तरह अमल दरामद किए जाने का प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि इमरान सुल्तान की अगवा की तजवीज भी इस टेप में मौजूद थी और स्पार्क ऐसी तजवीजों पर अमल दरामद के लिए पाकेशिया आया था। इससे साफ जाहिर था कि बाकी तजवीज पर भी अमल दरामद किया जा रहा होगा। इमरान तवील सांस लेता हुआ उठा तो टाइगर तेजी से आगे बढ़ा और इसने स्पार्क को उठाकर एक खाली सीट पर ठूंस दिया और फिर बड़ी फुर्ती से इसकी तलाशी लेने लगा और चंद लम्हों बाद इसने मफलूज स्पार्क की जेबों में से हर चीज निकाल ली। स्पार्क आंखें फाड़े खामोश पड़ा हुआ था। इसके चेहरे पर शदीद तकलीफ के आसार नुमाया थे, लेकिन वो हरकत करने से माजूर था और इमरान टाइगर को स्पार्क की तरफ बढ़ते देखकर तेजी से वापस पलटा और पायलट केबिन में घुसता चला गया। इस पर काबू पा लिया गया है, अब तुम वापस एयरपोर्ट पर चलो, इमरान ने चीफ पायलट से मुखातिब होकर कहा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप लोगों ने वाकई कमाल कर दिया। वैसे मैं पहले ही एहतियातन शहर के ऊपर ही गर्दिश कर रहा था ताकि किसी भी लम्हे नीचे उतरा जा सके। अगर मैं पाकेशिया की सरहद पार कर जाता तो फिर वापस मुश्किल हो जाती। पायलट ने इत्मीनान का सांस लेते हुए जवाब दिया। इसके साथ ही इसने ट्रांसमीटर ऑन करके एयरपोर्ट हुकाम से राब्ता कायम किया और इन्हें हाईजैकर के पकड़े जाने की इत्तला देने के साथ साथ जहाज को वापस एयरपोर्ट पर उतारने की इजाजत देने के लिए दरख्वास्त की। दरख्वास्त फौरन मंजूर कर ली गई और फिर थोड़ी देर बाद जहाज वापस एयरपोर्ट पर उतरता चला गया। एयरपोर्ट पर आला हुकाम मौजूद थे। जहाज का दरवाजा खुलते ही टाइगर ने स्पार्क को उठाकर कंधे पर लादा और सीढ़ियां उतरता चला गया। इमरान पहले ही बम और प्लास्टिक पिस्तौल पर कब्जा कर चुका था। इस प्लास्टिक पिस्टल ने इसे खासन मुतासिर किया था। ये वाकई जदीद तरीन इजाद थी और इमरान इसी का तफसीली मुआयना करना चाहता था। चुनाचे इन्हें जेबों में डाले वो नीचे उतराया और फिर एक्सट्रो के नाम ने तमाम हुकाम को पीछे हटकर हटाने और इमरान की हिदायत पर अमल करने पर मजबूर कर दिया। इमरान की हिदायत पर जहाज के स्टोर रूम से सर सुल्तान वाला ताबूत भी उतार लिया गया। सेकंड पायलट की लाश भी उतारी गई और इमरान तो सर सुल्तान का ताबूत और स्पार्क को लेकर एक खुसूसी गाड़ी में एयरपोर्ट की हदूद से बाहर आ गया, जबकि हुकाम सेकंड पायलट के कत्ल के सिलसिले में रस्मी कार्रवाई में मसरूफ हो गए। एयरपोर्ट की हदूद से बाहर आने के बाद इमरान ने ड्राइवर को इस गाड़ी से नीचे उतार दिया क्योंकि वो इसे दानिश मंजिल तो नहीं ले जा सकता था और वो खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली, जबकि टाइगर को इसने एयरपोर्ट से अपनी कार ले आने के लिए भेज दिया। और फिर टाइगर के जाते ही इमरान वैगन को तेज रफ्तार से चलाता हुआ दानिश मंजिल की तरफ बढ़ता चला गया। वो वैगन को हद्दुल इम्कान तेजी से चला रहा था ताकि जल्द अज जल्द दानिश मंजिल पहुंचकर सर सुल्तान का ताबूत से बाहर निकालकर इन्हें तिब्बी इमदाद दी जा सके। दानिश मंजिल के मीटिंग हॉल में सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान मौजूद थे। एक्सट्रो ने इमरजेंसी कॉल पर इन सबको बुलाया हुआ था। अभी तक इमरान नहीं पहुंचा था, इसलिए वो सब आपस में गॉपिस मारने में मसरूफ थे। इस बार बड़े अरसा बाद मीटिंग कॉल आई है, इसलिए या तो कोई खतरनाक किस्म के केस का आगाज हुआ है या फिर कोई केस खत्म भी हो गया है और हमें इन तक नहीं हुआ।
नोमानी ने कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा, मेरे ख्याल से एक्स्ट्रो इस वक्त मीटिंग कॉल करता है जब उसे टीम को बाहर भेजना होता है। कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बाहर जाने का मतलब आप लोग समझते हैं। अचानक दरवाजे में से इमरान की आवाज सुनाई दी। चूंकि कैप्टन शकील और नोमानी दरवाजे के करीब बैठे हुए थे, इसलिए इमरान ने इनकी बातें सुन ली थी। बाहर जाने का मतलब बाहर जाना ही होता है, और क्या हो सकता है? नोमानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारे यहाँ बाहर जाने का मतलब और है। हमारे देहात में चूंकि लैट्रिन वगैरह घरों में नहीं होती, इसलिए फितरत की पुकार का जवाब देने के लिए लोग बाहर खेतों में निकल जाते हैं। इसलिए बाहर जाने का मतलब फितरत की पुकार का जवाब देना होता है, इमरान ने बाकायदा लेक्चर देते हुए कहा। इमरान की बात सुनकर कैप्टन शकील और नुमानी बेख्तियार हंस पड़े, लेकिन बाकी होंक बने बैठे थे, क्योंकि इन्होंने नुमानी की बात ही ना सुनी थी, इसलिए वो बाहर जाने के मुतालिक बात ही ना कर रहे थे। मगर बाहर जाने का मतलब बताते ही आखिर तुम्हें जरूरत ही क्यों पेश आई? सफ्तर ने कहा, इसलिए कि हम सब अक्सर बाहर जाते रहते हैं, इमरान ने जवाब दिया और कोने में पड़ी हुई खाली कुर्सी पर बैठ गया। अगर आदमी की शक्ल अच्छी ना हो तो कम से कम इसे गुफ्तगू तो अच्छी कर लेनी चाहिए। तुम्हें मालूम है कि औरतों के सामने इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, तनवीर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। औरतें? तो क्या ये सब औरतें हैं? अगर तुम्हारी मुराद जूलिया है तो फिर तुमने जूलिया को औरत कहकर इसकी तौहीन की है, इमरान ने आंखें फाड़ते हुए कहा। क्यों, मैं औरत नहीं हूँ? जूलिया ने भी जवाब देते हुए आंखें निकाली। अरे तुम औरत हो, मैं तो समझा था कि तुम अभी लड़की हो, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा, और जूलिया ने शर्म से नर नीचे कर लिया, जबकि इसके दूसरे साथियों के हलक से बेख्तियार कहके ही निकल गए। और फिर इससे पहले के इमरान की बात का जवाब देता मीटिंग रूम में मौजूद ट्रांसमीटर जाग पड़ा और सब चौंक उठे। जूलिया ने ट्रांसमीटर के करीब बैठी हुई थी, तेजी से हाथ बढ़ाकर उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो मेंबर्स, क्या सब लोग मौजूद हैं? एक्स्ट्रो की मखसूस आवाज सुनाई दी। यस सर, सब लोग मौजूद हैं, जूलिया ने जवाब दिया। ये ट्रांसमीटर चूंकि मखसूस साख्त का था, इसलिए इसमें सवाल जवाब के लिए बार बार बटन ऑफ ऑन ना करना पड़ता था। जिस तरह टेलीफोन पर बराह रास्त सवाल जवाब हो सकते हैं, इसी तरह इस ट्रांसमीटर पर भी गुफ्तगू हो सकती थी। गुड, आप लोग इस तजस्सुस में होंगे कि इस इमरजेंसी मीटिंग का क्यों कॉल की गई है? एक्स्ट्रो के लहजे में मुस्कुराहट थी। जी हाँ जनाब, तजस्सुस की वजह ये से हमारे बाल खड़े हो चुके हैं, कान सुर्ख हो चुके हैं, आंखें उबलकर बाहर आने लगी हैं, और जनाब फितरत की पुकार, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में हाक लगाते हुए जवाब दिया। शट अप, नॉनसेंस, तुम्हें बात करने की भी तमीज नहीं रही? मैं इस किस्म की बेतकल्लुफी का आदी नहीं हूँ। तुम्हें इस सरकारी मीटिंग में सिर्फ इसलिए शामिल होने की इजाजत दी है कि तुम अक्सर सीक्रेट सर्विसेज के लिए काम करते हो, लेकिन मैं आखिरी बात तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि आइंदा अपनी जबान संभाल कर रखा करो, वरना ऐसी बदनाक सजा दूंगा कि तुम सारी उम्र बुलबुलाते रहोगे। एस्ट्रो ने इंतहाई सर्द लहजे में इमरान को डांटते हुए कहा। इमरान यूं कुर्सी पर सहम कर दुबक गया जैसे इसके सर पर छत गिरने वाली हो। बाकी मेंबर्स के तो सिर्फ होठों पर मुस्कुराहट रहने लगी, लेकिन तनवीर और जूलिया के चेहरे पर मुसरत से खिल उठे। इन्हें इमरान को एक्स्ट्रो की डांट खाकर कुर्सी में दुबकते देखकर दिली मुसरत हुई थी, क्योंकि वही इमरान था जो इन्हें अंगुलियों पर नचाता रहता था। सॉरी सर, मैं नहीं जानता था कि आप इतने गुस्से से भी डांट सकते हैं। वैसे बाय द वे आपको तो किसी प्राइमरी स्कूल में टीचर होना चाहिए, इमरान ने घूर सहमे हुए लहजे में कहा, लेकिन वो अपनी बात कर ही गया। तुम बाज नहीं आओगे। एक्स्ट्रो का लहजा फट पड़ने वाला था और सीक्रेट सर्विस के मेंबर के दिल इस बार धक से रह गए थे, क्योंकि इन्हें यकीन हो गया था कि अब एक्स्ट्रो इमरान को जरूर सजा देगा, और एक्स्ट्रो की सजा के तस्वुर से ही इनका रुआ कांप उठता था। वेरी सॉरी सर, मैं माफी चाहता हूँ, आप बेशक हाई स्कूल में लग जाएं, मुझे कोई एतराज नहीं है, इमरान ने मजीद सहमे हुए लहजे में कहा। तुम कुर्सी पर खड़े हो जाओ, अचानक एक्स्ट्रो ने गुस्से में डांटते हुए कहा। मगर सर, ये तो प्राइमरी स्कूल वाली सजा है, इमरान ने चौंकते हुए कहा। खड़े हो जाओ, एक्स्ट्रो ने गुस्से लहजे में कहा, और इमरान बादल नखास्ता उठकर कुर्सी पर खड़ा हो गया। मीटिंग हॉल से मौजूद सब मेंबर हैरत से इस अजीब और गरीब तमाशे को देख रहे थे। इमरान जैसे ही खड़ा हुआ, अचानक इसके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और इसके हल्के से बेख्तियार चीख निकल गई। इसके बाद तो इसके हलक से चीख निकलती चली गई। यूं लग रहा था कि जैसे इसके जिस्म पर हजारों वोल्ट बिजली का करंट दौड़ रहा हो। इसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से सुर्ख पड़ रहा था, पूरा जिस्म बुरी तरह कांप रहा था और आंखें बाहर निकल गई थी। बॉस, मजीद सजा ना दें, ये मर जाएगा। अचानक जूलिया से ना रहा गया और वो मिन्नत भरे लहजे में बोल पड़ी। इसने इमरान की बेपनाह तकलीफ बर्दाश्त न हो सकी। ओके, जूलिया की सिफारिश पर
میں ایک बार फिर तुम्हें माफ कर रहा हूँ, वरना तुम्हारे असाब हमेशा के लिए मफलूज कर देता। एक्स्ट्रो ने सर लहजे में कहा और इसके साथ ही इमरान धड़ाम से कुर्सी पर गिर गया। कुर्सी में दौड़ने वाले करण गायब हो चुका था और इमरान कुर्सी पर गिरा हुआ अपना सांस संभालने की तंगो-दो कर रहा था। सफदर और कैप्टन शकील अलबत्ता ये सोच रहे थे कि कुर्सी तो लकड़ी की है, फिर इसमें इतना जोरदार करंट कैसे हो सकता है जिसने इमरान जैसे आदमी की हालत कर दी। लेकिन दूसरे लम्हे एक्स्ट्रो की बात सुनकर वो इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। सुनो साथियों, इस बार हमारे इतना जोरदार करंट कैसे दौड़ सकता है जिसने इमरान जैसे आदमी की हालत कर दी। लेकिन दूसरे लम्हे एक्स्ट्रो की बात सुनकर वो इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। सुनो साथियों, इस बार हमारे सामने इंतहाई खतरनाक और इंतहाई अहम मिशन है, और ये मिशन सिर्फ एक मुल्क के खिलाफ नहीं है बल्कि 2 मुल्कों के खिलाफ है। रूसिया और इसके खतरनाक तरीन सीक्रेट सर्विस के जीबी और काफिरिस्तान और इसकी सीक्रेट सर्विस से टकराव होगा। ये दोनों मुल्क इस बार मुल्क मिलकर पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। इन्होंने खुफिया तौर पर एक मीटिंग की जिसमें ये तय पाया कि काफिरिस्तान पाकिस्तान के दरियाओं में एक मखसूस केमिकल मिलाएगा जिससे आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की तमाम आबादी ज़हनी तौर पर पसमानदा, दूसरे लफ्जों में होश आवाज से आरी और पागल हो जाएगी। तसव्वुर कीजिए कि 10 करोड़ अफराद को पागल बनाते जाने की तजवीज पर अमल दरामद किया जाने वाला है। चूंकि पाकिस्तान के सिवाय एक के बाकी तमाम दरिया काबुस्तान से निकलते हैं, इसलिए वो लोग आसानी से अपनी तजवीज पर अमल दरामद कर सकते हैं। इसके साथ ही रूसिया वाले ऐसे मसनूई इंसान बना रहे हैं जो हमारे मुल्क के लोगों की ऐन मुताबिक होंगे। इनके जिस्म में इंतहाई ताकतवर बम नस्ब किए जाएंगे। ये देखने में बिल्कुल आम आदमी महसूस होंगे। इसी तरह बातें करेंगे, बोलेंगे, हरकत करेंगे। इनमें कंप्यूटर नस्ब होंगे, लेकिन नहीं, बाकायदा दूर से कंट्रोल किया जाएगा। और फिर ये मसनूई आदमी पाकिस्तान के अहम तरीन हरकत करेंगे। इनमें कंप्यूटर नस्ब होंगे, लेकिन इन्हें बाकायदा दूर से कंट्रोल किया जाएगा। और फिर ये मसनूई आदमी पाकिस्तान के अहम तरीन अड्डों, पुलों, डैम्स, एटमी लेबोरेटरियों और अहम तरीन और असास मराकज में फैला दिए जाएंगे और इनका पता चलाना और इन्हें शनाख्त करना भी मुश्किल हो जाएगा। और रूसिया वाले जब चाहेंगे इनके जिस्म में मौजूद ताकतवर बम फाड़कर पूरे पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर सकते हैं और इस तबाही को कोई नहीं रोक सकेगा। एक्स्ट्रो तफसीर बताते बताते रुक गया और सेक्रेटरी सर्विस के मेंबरान आंखें फाड़े दम बखौर ये तफसीलात सुन रहे थे। इस कदर खौफनाक तजवीज़ के मुतालिक सुनकर इन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे इनके जिस्मों से भी खून निचोड़ लिया गया है। वेरी सॉरी सर, मुझे अब एहसास हो रहा है कि आप इतने बाखबर हैं। अगर आप बाखबर ना हो तो ये लोग पूरे मुल्क को तबाह कर दें। मैं अपने रवैये पर माजरत ख्वाह हूँ। अचानक इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में एक्स्ट्रो से मुखातिब होकर कहा। इसके लहजे में बेपनाह खुलूस था। तुमने जिस खुलूस से बात की है इस पर मैं तुम्हें माफ करता हूँ, वरना मेरा प्रोग्राम यही था कि मीटिंग के बाद तुम्हें जबरन पागल खाने में दाखिल करा देता हूँ और वहाँ कम से कम 1 माह खतरनाक तरीन पागलों में गुजारकर तुम्हारे होश हमेशा के लिए दुरुस्त हो जाते। बहरहाल तुम्हारे खुलूस की बिना पर तुम्हें माफ किया जा रहा है, लेकिन आइंदा मैं किसी किस्म की बेहूदगी बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक्स्ट्रो ने सर लहजे में जवाब देते हुए कहा और सारे मेंबरान तसव्वुर में इसे खौफनाक सजा पर कांप उठे। 1 माह तक खतरनाक तरीन पागलों में रहना वाकई खौफनाक तरीन सजा थी और वो जानते थे कि एक्स्ट्रो के लिए इस सजा पर अमल दरामद कर देना मामूली बात है। हाँ, तो मैंने दुश्मनों की तजावीज मुख्तसरन बता दी है। ये मीटिंग जाहिर है इंतहाई खुफिया थी, लेकिन मुझे इस मीटिंग की भनक मिल गई है और फिर मैंने अपने जरिए इस मीटिंग का मुकम्मल टेप हासिल कर लिया है और इस तरह इस मीटिंग की मुकम्मल कार्रवाई मेरे सामने आ गई। अब सूरत हाल ये है कि हमें इस तमाम तजावीज को अमल दरामद होने से पहले रोकना है। काफिरिस्तान के इस कारखाने को तबाह होना चाहिए जिसमें वो पागल कर देने वाला केमिकल तैयार हो रहा है। रूसिया को इस कारखाने को भी तबाह होना चाहिए जिसमें मसनूई इंसान तैयार किए जाते हैं। चूंकि इन दोनों तजावीज पर बैक वक्त अमल दरामद किए जाने का फैसला किया गया है, क्योंकि इनके ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस अगर मुतहरिक हुई तो ज्यादा से ज्यादा एक मुल्क के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगी और इस तरह वो पाकिस्तान को यकीनी तौर पर तबाह करने में कामयाब हो जाएगी। इसलिए मैंने सोच विचार के बाद ये फैसला किया है कि हमें इस बार इंतहाई तेज रफ्तारी से कार्रवाई करना होगी। रूसिया में तो काम शुरू हो गया है, लेकिन मतलूबा तादाद में मसनूई इंसान बनाने में कम से कम 1 हफ्ता
1 हफ्ते का अरसा चाहिए, इसलिए उसे दूसरे नंबर पर रखा गया है। काफिरिस्तान में चूंकि पानी में मिलाए जाने वाला केमिकल तैयार हो रहा है और वो भी किसी वक्त इसे पानी में मिला सकते हैं, इसलिए इसे पहले नंबर पर रखा गया है। लेकिन ये दोनों मिशन बारी बारी जरूर पेश आएंगे, लेकिन हमारी कामयाबी सिर्फ इंतहाई तेज रफ्तार कार्रवाई पर मबनी है। मामूली सी वक्त का जिया भी हमारी मुकम्मल नाकाफी पर मुंतज होगा। हमें हर मुमकिन तेजी से काफिरिस्तान से मिशन मुकम्मल करके रूसिया पर झपटना होगा, क्योंकि 1 हफ्ते बाद वो अपना मिशन शुरू करेंगे। इसलिए दोनों मिशनों के लिए मेरे पास सिर्फ 1 हफ्ता है। अगर हम काफिरिस्तान में उलझ गए, दूसरा खौफनाक मिशन मुकम्मल हो जाएगा और इनमें से एक तजवीज पर अमल दरामद का मतलब पाकिस्तान की मुकम्मल तबाही है। एक्टर ने सर्द लहजे में कहा, अब आप पहले मिशन की तफसीलात सुन लें। काफिरिस्तान में हमारे फौरन सर्विस ने फौरी एक्शन में आकर ये इत्तला दी है कि इस केमिकल तैयार करने वाली कारखानों के इंचार्ज वहां की टॉप सीक्रेट सर्विस महादेव चक्कर का सरबराह ऐश्वर्य दास है। इसलिए ऐश्वर्य दास ने ही मीटिंग में तजवीज पेश की थी, क्योंकि इसकी तंजीम काफी अरसे से इस मिशन पर काम कर रही है। फौरन सर्विस ने इस ऐश्वर्य दास के हेडक्वार्टर को तलाश कर लिया है। ये हेडक्वार्टर काफिरिस्तान के एक बड़े शहर सलगाम में कायम है और जमीन दोज बना हुआ है। इसकी हिफाजत के लिए बहुत जबरदस्त साइंसी इंतजाम किए गए हैं और ऐश्वर्य दास सिवाय खास तरीन मौकों के इन हेडक्वार्टर से बाहर नहीं निकलता। यहाँ हमारा पार्ट 7 इख्तिताम पजीर होता है। बकिया किताब सफ़ा नंबर 157 से समाअत फरमाइए। शुक्रिया।